Hello everyone and good evening. In the previous lecture, we have seen a definition of quantum numbers. Quantum number topic is very interesting. There are four types of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. I think the first quantum number we have seen in the last lecture, in the previous lecture. Okay, आपको याद होगा डेफिनेशन क्वांटम नंबर का. Yes, the numbers which gives us idea regarding the state of electron, location of the electron, as well as the energy of the electron is known as और आर नोन एज क्वांटम नंबर्स. तो मेरे ख्याल से पहला वाला हमारा हो गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी हम आज देखते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर पहले. सो हियर सेकेंड क्वांटम नंबर इज नथिंग बट azimuthal क्वांटम नंबर, जिसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं एल. लगा म्हणतो आपण azimuthal क्वांटम नंबर आणि लगा सिंबल आहे एल. एल इज द सिंबल फॉर द azimuthal क्वांटम नंबर. नाउ लेट्स सी वन बाय वन द फीचर्स और डिस्क्रिप्शन फॉर दिस क्वांटम नंबर. दिस is also called as orbital quantum number or secondary quantum number or subsidiary quantum number or angular momentum क्वांटम नंबर. सो ये सब इसके नाम है. ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर एज वेल. As I told you, it is having the symbol L. So it is denoted by the symbol small l. It gives the sub energy level to which electron belongs. Yes, I told you. Principal quantum number दिखाता है हमें main energy level. For example, I told you, if the value of n for any electron is supposed to, n is nothing but the principal quantum number, then you have to say that electron is present in the second orbit or second shell. Similarly, in these orbits there are many, there are subshells or sub energy levels. तो यहां पे L जो है हमें देगा वो subshell. I mean, it will tell us in which subshell that electron is present or which subshell that electron belongs. So ये है second point. It gives the sub energy level to which electron belongs. It determines the shape of orbit. Now see, there are actually s orbital, p orbital, d orbital and f orbital.
अभी हम देखेंगे बाद में, बट फिलहाल लेट मी टेल यू, s ऑर्बिटल्स आर दे आर नथिंग बट स्फेरिकल इन नेचर। p ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं डम्बेल शेप, डम्बेल, यू नो डम्बेल। देन d orbital is having the shape of double dumbbell and f orbital they have the shapes very complicated। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग शेप होते हैं। सो ये क्वांटम नंबर क्या करेगा, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल और शेप ऑफ द सब एनर्जी लेवल। सो इस तरीके से अभी हम जानेंगे कि the value of L depends on the value of N। yes, as I told you, the value of L depends on the value of N। मतलब yes, L is nothing but the azimuthal quantum number and N क्या होता है यहाँ पे, N होता है principal quantum number। So here the value of L depends on the value of N, that's why I said। Now L can have N number of values। L can have N number of values। मतलब अगर n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर एक है तो l का एक ही वैल्यू होगा। अगर n का वैल्यू 2 है, मतलब अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसके लिए l के 2 वैल्यूज होंगे। इस तरीके से अगर n का वैल्यू 3 है तो l विल हैव 3 वैल्यूज। अगर n का वैल्यू 4 है तो l विल हैव 4 वैल्यूज। So L can have n number of values। okay, now जो वैल्यूज यहां पे होंगे इनका रेंज क्या होगा। see, first of all these values will be positive values। L will have only positive values। तो इनका जो रेंज है वो है 0 to n-1। don't get confused, I will tell you now, just right now। रेंज आता बघा, L can have n number of values, पण त्या व्हॅल्यूज काय असतील, व्हॉट इज द रेंज। तो पहला वैल्यू होगा 0 और जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो होगा n-1। मतलब सी नो फॉर एग्जांपल देखते हैं, चलो हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। राइट, नाउ n इज इक्वल टू 1 मतलब आपको पता है कि ये है फर्स्ट शेल, तो ये हो गया k शेल, ये हो गया l शेल, ये हो गया m शेल और ये हो गया n शेल। पता है ना आपको, शेल के ये सिंबल्स होते हैं, ये हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भी। अभी जैसे कि मैं आपको बोला L कैन हैव n नंबर ऑफ वैल्यूज। सो L की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यस, अगर n का वैल्यू 1 है मींस L can have 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू होगा उसका, क्योंकि यहां पे n का वैल्यू कितना है, 1 है। सेकंड शेल के लिए L can have 2 वैल्यूज। थर्ड शेल के लिए L can have 3 वैल्यूज। फोर्थ शेल के लिए L कैन हैव यस 4 वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको बोला इनकी रेंज क्या होगी। अब अगर यहां पे आप देखोगे पहले ऑर्बिट के लिए L का एक ही वैल्यू होगा और वो वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, और जो लास्ट वैल्यू है n-1 बोला है, मतलब क्या होगा यहां पे 1-1। तो सी, और जो फर्स्ट वैल्यू 0 और जो लास्ट वैल्यू n-1, यहां पे n का वैल्यू कितना है, 1 ही है, तो 1-1 यहां पे क्या हो गया, 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ
यहां पे एक ही वैल्यू होगा और वो वैल्यू पता है क्या है? वो वैल्यू रहेगा 0। कैसे? रेंज, फर्स्ट वैल्यू इज 0, लास्ट वैल्यू इज n-1, लेकिन यहां पे एक ही वैल्यू है। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो वैल्यू आएंगे, L कैन हैव टू वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द सेकेंड वैल्यू? इथे बघा, n इज इक्वल टू 2 आहे, सो 2 minus 1 is 1. So here the second value is nothing but equal to 1. फर्स्ट वैल्यू इज 0, लास्ट वैल्यू यहां पे क्या आया? n-1। यहां पे n का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 में से 1 गया, तो वैल्यू क्या आएगा? 1। अभी यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे 3 वैल्यूज आएंगे। कैन यू गेस? करेक्ट। फर्स्ट वैल्यू आएगा 0, लास्ट वैल्यू कौन सा आएगा? n-1, 3 minus 1 क्या है? 2। लास्ट वैल्यू यहां पे है 2, और जैसे कि मैंने आपको बोला, इट हैज पॉजिटिव वैल्यूज, यहां पे माइनस आने का कोई यहां पे चांस नहीं है। तो 0, 1 and 2 दीज आर द वैल्यूज। अभी आप मुझे बता पाओगे यहां पे वैल्यूज कौन से आएंगे? 0 फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू कौन सा होगा? n-1, 4 minus 1 is 3. So here 0, 1, 2 and 3, in this way values will appear. ठीक है ना? सो इस तरीके से देखिए यहां पे ये वैल्यूज आ गए। नाउ ये मैंने लिखा है ऑर्बिट नंबर, यू कैन से, और यू कैन से हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है शेल वैल्यूज ऑफ L। ठीक है। अभी यहां पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इफ L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 3, जब भी L का वैल्यू 0 होगा, क्या? When the L has value 0, it is known as S, subshell. I told you सब एनर्जी लेवल मतलब होता है सबशेल, सो इट्स नथिंग बट S सबशेल। अगर L का वैल्यू 1 है तो होगा P सबशेल, यहां पे होगा D और यहां पे होगा F सबशेल। ठीक है ना? सबशेल। सबशेल इस तरीके से L इज इक्वल टू 0 वैल्यू आया, मतलब वो है S सबशेल। आपको याद है, आपने लास्ट ईयर 10 में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो पता है कैसे आया वो? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन और differentiating electron enters in the S subshell, that's a S orbital. अगर वो P में है तो it's a P orbital, it's a P block element. लास्ट इलेक्ट्रॉन जर गेला S सबशेल मध्ये तर तो असेल S ब्लॉक एलिमेंट, तर तो असेल P मध्ये तर तो असेल P ब्लॉक एलिमेंट, आणि जर लास्ट इलेक्ट्रॉन असेल D मध्ये तर तो असेल D ब्लॉक एलिमेंट। In this way, so in this way elements are classified. फिलहाल अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पे फोकस करो, हम आएंगे उसकी तरफ। L इज इक्वल टू 0 आया समझ में? यह है S सबशेल। L इज इक्वल टू 1 मतलब यहां पे क्या है? यह है यहां पे P सबशेल। L इज इक्वल टू 2 क्या होता है? D सबशेल। एंड L इक्वल टू 3 क्या होता है? F सबशेल। अभी देखिए S का मीनिंग जो है ये होता है शार्प, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर आता है यहां पे फंडामेंटल। सो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये है इनके मीनिंग्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी S सबशेल is equal to 2,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल इज इक्वल टू 2। पी में मैक्सिमम होते हैं 6, डी में मैक्सिमम होते हैं पता है कितने 10, एंड एफ में होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ठीक है, ये टेबल आपको ध्यान में रखने का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल इज 2, इन टी इट्स अ 6, इन डी इट्स अ 10, एंड इन एफ इट्स नथिंग बट 14। एंड अभी यहां पे एस सब शेल का शेप कैसा है, हम यहां पे लिखते हैं एस सब शेल एज आई टोल्ड यू इज स्फेरिकल, टी इज डम्बेल शेप, डी इज डबल डम्बेल, एंड एफ इज कॉम्प्लिकेटेड मतलब काफी मुश्किल है, निकाल नहीं पाएंगे। सो ये है टेबल, आपको ध्यान में रखने का है। सो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये क्या लिखा है मैंने। ये है यहां पे एजिमिथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज, नेम ऑफ सबशेल, इसका मीनिंग क्या है, और ये है जो लिखा है मैंने 2, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल। लास्ट में आएगा शेप, और शेप में है ये फिर 4 टाइप के शेप, स्पेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल एंड कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको लिख लीजिए। Now let's continue here. If you see, the first column here is principal shell. Sorry for the disturbance. ये है प्रिंसिपल शेल KLMN, वैल्यू ऑफ n, आई टोल्ड यू n म्हणजे काय असेल, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर किंवा सिंपली म्हणा ऑर्बिट नंबर। पहिला जो ऑर्बिट आहे याला काय सिंबॉल आहे k, सेकंड ऑर्बिटला काय सिंबॉल असतो l, थर्ड जे ऑर्बिट आहे याला सिंबॉल काय असतो m, and for the fourth orbit the symbol is n. Value of L, yes, value of L आपण काढलं बघा इथे कसं काढलं तुम्हाला माहिती ना, I told you यांची का रेंज असणार आहे, रेंज इज 0 to n-1, तर आपण हे काढलं बघा मगाशी, याच व्हॅल्यू इथे लिहिलंय मी याच्यामध्ये। आणि आता बघितलं आपण की जर 0 असेल, L ची व्हॅल्यू जर 0 असेल, अगर L का वैल्यू 0 है तो हम इसे क्या बोलते हैं S। तो इस तरीके से यहां पे पॉसिबल सबशेल कौन सा होगा, 0 है मतलब कौन सा आएगा, S आएगा। यहां पे क्या दिया है वैल्यू, देखिए अगर 0 होता है अगेन तो क्या होता है वापस S, तो यहां पे S आएगा। और दूसरा क्या वैल्यू यहां पे 1 मतलब क्या होता है P, तो यहां पे S और P ऐसे 2 आएंगे सबशेल्स, पॉसिबल सबशेल्स। यहां पे 3 आएंगे, तीसऱ्या ऑर्बिट साठी 3 येतील व्हॅल्यूज 0 1 2। 0 म्हणजे काय मग S,
वन असेल तर काय येतं पी आणि टू असेल तर काय येतं डी. सो हियर एस पी डी. तो थर्ड मतलब थर्ड जो एनर्जी लेवल है इसमें आएंगे यस 3 पॉसिबल सबशेल्स. तो यहां पे ऑब्वियसली कितने आएंगे 4 आएंगे क्योंकि यहां पे 0 भी है 1 भी है 2 भी है 3. 0 अगर है तो एस, 0 अगर है तो यहां पे क्या आएगा एस आएगा. 1 अगर है तो पी आएगा. 2 अगर है तो डी आएगा और 3 अगर है तो यहां पे क्या आएगा एफ आएगा. तो यहां पे 4 आएंगे. सो नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल. पहली जी मतलब पहला जो ऑर्बिट है इसमें एक ही सबशेल है. कौन सा है वो एस. सो आई विल राइट हियर ओनली 1. यहां पे 2 आएंगे सबशेल. सो आई विल राइट हियर 2. कौन कौन से 2? एक है एस, दूसरा है पी. यहां पे 3 है, एस भी है पी भी है और डी है. तो यहां पे 3 आएंगे और यहां पे कितने आएंगे 4. सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस आल्सो. ठीक है. अभी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आई विल टेल यू. आई विल गिव यू द होमवर्क असाइनमेंट आल्सो. डोंट वरी, वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस आल्सो. बट नाउ राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. अगदी शांतपणे याचा तुम्ही करायचा आहे अभ्यास. इट्स नॉट डिफिकल्ट ॲट ऑल. ओके. नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबसेल. अब विचार करा, ये है वैल्यू ऑफ एन. कौन सा है 1. और यहां पे अगर पॉसिबल सबसेल है एस, मतलब सोचिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एन का वैल्यू है 1 और एल का वैल्यू है 0. क्या एन म्हणजे काय प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू काय त्याची 1 आणि एल ची व्हॅल्यू काय त्याची 0. त्याला कसं लिहायचं, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सबशेल. तो देखिए हम मेन शेल को यहां पे लिखेंगे 1 क्योंकि द फर्स्ट शेल और L0 मतलब क्या होता है S. तो यहां पे इसका हो जाएगा 1S नोटेशन. सोचिए n इज इक्वल टू 3 है और L का वैल्यू है 1. तो कैन यू टेल मी इसका कैसे आएगा नोटेशन. n का वैल्यू 3 है तो मतलब यहां पे आएगा थर्ड सबशेल, थर्ड शेल और L का वैल्यू 1 बोला है मतलब क्या आएगा यहां पे P. तो 3P यहां पे आ जाएगा. ठीक उसी तरीके से n अगर समझो 4 है, L का वैल्यू अगर आपको दिया है यस 2 तो कैसे आएगा. तो यहां पे है 4th और L का वैल्यू 2 मतलब यहां पे क्या आएगा इधर आएगा 4D. सो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द सबशेल. Okay, this table is also quite important for us. They may ask you, what is the shape of P subshell? What is the shape of D subshell? Or they may also ask you, how many electrons are present in the P subshell? I mean maximum number. तो ये इसमें आपको मालूम होना चाहिए. और ये शेप भी. अभी ये कैसे निकाले वैल्यूज. Now note down this also. Each subshell contains maximum of 2 in bracket 2L plus 1. अभी एक हम काम करेंगे यहां पे, ये सॉल्व करते हैं हम इसमें से वैल्यू. देखो यहां पे ये फॉर्मूला है 2 in bracket twice L plus 1. So imagine that L is equal to 1. L का वैल्यू यहां पे क्या है 1. तो क्या आएगा. So 2 in bracket क्या आएगा. Yes, I will make a bracket like this 2 bracket. देखिए अभी यहां पे जो L का वैल्यू है यहां पे मैंने रिप्लेस क्या किया है उसको 1. ठीक है. तो क्या आएगा 2 1 2 plus 1 यस 3 2 6. तो इस तरीके से यहां पे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन. देखिए L इज इक्वल टू 1 तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है 6. चलिए अगर यहां पे होता L इज इक्वल टू 3 तो क्या आएगा यहां पे. सो 2 इन ब्रैकेट यही फॉर्मूला. यहां पे L का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा हमें 3. तो यहां पे 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस 1 क्या आएगा 3 2 6 प्लस 1 7 7 2 14. तो इस तरीके से यहां पे आएंगे 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अक्सर आते हैं एमसीक्यूज में. सीईटी में मेरे ख्याल से टॉपिक तो नहीं आएगा आपको. आई थिंक इट इज नॉट देयर फॉर द सीईटी एग्जाम.
बट रिमेंबर यहां पे आएंगे 49। एज पर द ओल्ड सिलेबस ये नहीं था पहले, आई मीन सीटी में नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पे निकाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द गिवन सबशेल। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। इसी के साथ यहां पे एजिमुथल क्वांटम नंबर खत्म, ओके। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट बिफोर दैट ये आपने लिखा होगा, लेकिन ये शायद नहीं लिखा है और ये नहीं लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Now, the next quantum number, third, is magnetic quantum number. To save our time, I have written some points on the board. Now see, this quantum number is used to explain the Zeeman effect. I think in the previous lectures also I told you the definition of Zeeman effect. Yes, when an atom emitting radiation is placed in a strong magnetic field, then each spectral line is get divided into a number of fine lines. Okay, so इसको बोलते हैं Zeeman effect. फिलहाल अभी यहां पे क्या है सिग्निफिकेंस हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। आई विल टेल यू, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल m. This number is also referred to as orientation quantum number. It is also known as orientation quantum number. Electron get oriented in certain shells. What is the meaning of the term orientation? Understand? क्या होता है orientation? Yes. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतने पार्ट में, that is called as orientation. So orientation quantum number because it gives the distribution of electron cloud in the space around the nucleus. Because it gives distribution of electron cloud. Electron cloud का कैसे हुआ है distribution न्यूक्लियस के अराउंड, इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमें बताएगा. अ सबशेल इन एन एटम आपण बघितलं तर मेन शेल असते बघा ऑर्बिट नंबर, राईट. आपण आता बघितलं मगाशी की देर आर 4 सबशेल्स एस पी डी एफ. तर या शेलच्या आय मीन सबशेलच्या मध्ये अजून असतात काही सबशेल्स. नाउ लुक एट दिस. A subshell in an atom is supposed to be composed of several orbitals or subshells. ओके, शेलच्या मध्ये पुन्हा अजून सबशेल. मॅग्नेटिक आता बघा असं इमॅजिनरी आहे, तुम्हाला याची काय आयडिया नसेल आतापर्यंत 10वी पर्यंत, पण विचार करा. एंड इट्स इमैजिनरी कंसेप्ट, मतलब आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है कि किस तरीके से हो गए वो सब शेल, ये ऐसे हैं वैसे हैं, प्रैक्टिकली. ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m टेल्स टू विच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. नाउ अभी हम देखते हैं किस तरीके से. आई विल टेल यू दिस पॉइंट. इट ऑल्सो टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच करस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर शेल. ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे. पहले मैं जो बोलता हूं यहां पे ध्यान से जरा सुनिएगा. नाउ द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l. M can have, M म्हणजे काय आलं तुम्हाला, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, ट्वाइस L प्लस 1 values. M can have twice L plus 1 values. Twice L plus 1 values. Okay. Now range.
ये जो यहां पे वैल्यूज होंगे, कितने वैल्यूज होंगे? ट्वाइस l प्लस 1 वैल्यूज। इनका रेंज क्या होगा? तो इनका जो रेंज है वो है -l थ्रू 0 टू +l। ये है इनका रेंज। -l पहला वैल्यू होगा, बीच में 0, लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वो होगा +l। आई विल टेल यू इन टैबुलर फॉर्म। सपोज हियर l इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 0 तुम्हाला माहिती आहे, दॅट इज नथिंग बट s सबसेट। पाहिलं मग आपण त्या टेबल मध्ये। सो l इज इक्वल टू 0 आहे, तर बघा m can have twice l plus 1 ना, सो 2 in bracket 0 plus 1 किती होईल व्हॅल्यूची? येस, 1 व्हॅल्यू। जर l इज इक्वल टू 1 असेल देन m can have 2 in bracket किती येईल इथं? 1 plus 1 किती होईल व्हॅल्यू? 2 plus 1, 3 values. L is equal to 2 असेल then m can have 2 in bracket 2 plus 1 values. 2 2s are 4 plus 1 5 values. आणि L is equal to 3. M can have 2 in bracket 3 plus 1 काय येईल याच्यात बोला? 2 3 6 plus 1 7 values. बघा L is equal to 0 तुम्हाला माहिती आहे ते असतं s ऑर्बिटल, हे असतं p, हे असतं d आणि हे असतं f. नाउ इथे 1 व्हॅल्यू आहे, पण ती व्हॅल्यू काय असेल माहिती आहे? रेंज काय बघा त्याची, काय दिली आहे? -l थ्रू 0 टू +l. नाउ दिस इज द रेंज. -l म्हणजे काय? इथे 0च आहे फक्त, सो इधर जी व्हॅल्यू येईल m ची, व्हॅल्यू ऑफ m काय येईल? फक्त इथं 0. ठीक आहे, इथे 3 व्हॅल्यूज आहेत. काय येईल? पहिली व्हॅल्यू आपली -l म्हणजे काय येते? -1 ही आहे पहिली व्हॅल्यू, थ्रू 0 मधली व्हॅल्यू 0, लास्ट व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे? +l म्हणजे इथे +1. इथे 5 व्हॅल्यूज आहे आणि त्या काय येतील? -l म्हणजे ती -2 ही फर्स्ट व्हॅल्यू येईल आणि +2 ही विल लास्ट व्हॅल्यू. सो हिअर -2 -1 0 +1 अँड +2 5 व्हॅल्यूज. इथे देयर विल बी 7 वैल्यूज. क्या होगा वैल्यू? पहला यस 7 देखा ना कैसे निकाला हमने. अभी यहां पे क्या आएगा? पहला वैल्यू -l मतलब -3 ये पहला वैल्यू, +3 विल बी लास्ट वैल्यू. सो -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3. 7 values are there. m क्या सॉरी m च्या इथे 7 व्हॅल्यूज येतील. m इथं 0 असणार आहे, एकच व्हॅल्यू आहे. इथे 3 व्हॅल्यूज आहे, इथे 5 व्हॅल्यूज आहे, इथे 7 व्हॅल्यूज आहे. म्हणून बघा अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे s ऑर्बिटल विल हैव ओनली 1 ओरिएंटेशन, p ऑर्बिटल विल हैव 3 ओरिएंटेशन. दैट्स व्हाई p ऑर्बिटल के 3 टाइप्स आएंगे. पता है कौन कौन से? p ऑर्बिटल के टाइप्स आएंगे px, py, pz. देखिए p के आएंगे 3 टाइप्स, p ऑर्बिटल दैट्स व्हाई हैव 3 वैल्यूज. अगर हम बात करते हैं d ऑर्बिटल की, यहां पे है 5 वैल्यूज. यस, -2 -1 0 +1 +2. so d orbital will have 5 type of orientation: d xy, d yz,
dZx dx² माइनस y² एंड dz²। ये है वो d के 5 टाइप के वैल्यूज। वैसे f के होंगे 7 टाइप के वैल्यूज। बघा ना, जर मला द्यायचं असेल बॉक्स डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये, तर डी साठी मला अशा प्रकारचं बॉक्स दाखवावं लागेल। 1 2 3 4 5, प्रत्येक बॉक्समध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर होतील। असे करून मला माहिती आहे डी मध्ये मॅक्झिमम 10 इलेक्ट्रॉन बसतात। पी मध्ये मॅक्झिमम बघा, तुम्हाला माहिती आहे px py pz। तर याचा जर बॉक्स काढला तर 2 2 4 2 6, in this way 6 electrons will get occupied in the p orbital. Here will be 10 for f, 7 2 14। s के लिए कितने आएंगे? बस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। s ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं s ऑर्बिटल के लिए, तो बस एक ही बॉक्स आएगा जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी आप यहां पे ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m टेल्स टू विच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल इथे बघा ना, हे किती व्हॅल्यू आहेत? 5 व्हॅल्यूज आहेत। किती व्हॅल्यूज आहे? 3। -1 व्हॅल्यू ती म्हणा, इट्स फॉर px, 0 फॉर py, +1 फॉर pz। इस तरीके से इट ऑल्सो टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच करस्पॉन्ड्स टू पर्टिक्युलर शेल। मग सांगितल्याप्रमाणे एस मध्ये एकच असतं, टी मध्ये 3 टाइप्स, डी मध्ये 5, एफ मध्ये 7 टाइप्स, अशा पद्धतीने आले। सो ये है इनका ओरिएंटेशन। सो लास्ट के 2 पॉइंट आपको इसमें समझ में आए होंगे, आई होप सो। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी सिर्फ एक बचा है और वो है स्पिन क्वांटम नंबर। बड़े आराम से प्रॉपरली आप नोट डाउन करते जाइएगा। इससे पहले आपको पता है वीडियो पॉज करके आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हो, राइट। सो नोट डाउन दिस वन एंड दिस फॉर्मूला, नाउ यू अंडरस्टैंड। रेंज भी आया समझ में आप लोगों को। नोट डाउन दिस वन। Now, this is the last quantum number and very easy to understand. Spin quantum number. Principal quantum number होता है ना, बिल्कुल वैसे बहुत easy है, ध्यान से देखिएगा। But before that, can you tell me what is the meaning of the word spinning? Yes? The rotation of an electron about its own axis is called spinning। आपको पता होगा in the cricket also there is off spinner, leg spinner, yes। So that spinners rotate the ball। तो ठीक उसी तरीके से यू नो दैट इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होता रहता है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। Rotation of the electron about its own axis is known as spinning। So imagine करो, you know that earth, you know, revolves around the sun। In the same manner, electron rotates around the, you know, nucleus in the circular path, as well as it also rotates about its own axis। And this rotation of the electron about its own axis is of 2 types।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज नोन एज पॉजिटिव स्पिन। सो आई विल राइट हियर when an electron rotates about its own axis in clockwise direction, then its spin is denoted by upward arrow और +1/2 होता है इसका नोटेशन। इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा इसके लिए सिंबल अपवर्ड स्पिन, मींस दैट इलेक्ट्रॉन showing the rotation in the clockwise direction. Similarly, when an electron rotates about its own axis in anti-clockwise direction, then its spin is by downward arrow or -1/2. सो देखिए इसका मतलब ये हुआ अपवर्ड स्पिन अगर होती है तो दैट इलेक्ट्रॉन शोज रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर होती है डाउनवर्ड स्पिन तो ये होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अगर देखिए ये स्पिन और ये जो दोनों यहां पे स्पिन मैंने दिखाई है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मींस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज शोइंग रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दूसरा जो है वो दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक उस तरीके से अगर यहां पे ये है इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन ऑपोजिट, यहां पे ऊपर की है ऑपोजिट स्पिन और ये है पैरेलल स्पिन। ओके, सो देखिए अभी मैंने आपको कहा एस ऑर्बिटल के लिए अगर हमें दिखाना है एक बॉक्स होगा, P के लिए यू नो दैट PX, PY एंड PZ। D के लिए 5 होंगे, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। यहां पे ये S के लिए कोई हम ऐसे लिखते हैं, तो S के लिए देखिए अगर हमें पता है पहला इलेक्ट्रॉन अगर आएगा इस तरीके से तो दूसरा आएगा मतलब इस तरीके से, तो ये हो गया we have to say that the spins get neutralized. First electron will enter here, second will enter here, third will enter here. ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे हर्ट्ज रूल में, HUND। तो यहां पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर होंगे पहले। अभी आप देख सकते हो कि यहां पे तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो है अनपेयर्ड, ये है पेयर्ड, यहां पे स्पिन्स हुई है न्यूट्रलाइज, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे है और दे आर हैविंग पैरेलल स्पिन। ठीक है, और अभी देखो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे पुट किए हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस तरीके से आएंगे। अभी ये हो गए न्यूट्रलाइज, इस तरीके से डी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे 1
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से होगा हेयरिंग, और F के आएंगे 14, ठीक इस तरीके से। सो इन दिस वे स्पिन क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपवर्ड अगर होती है स्पिन, इट इज शोन बाय +1/2, उसके लिए S का वैल्यू क्या होगा +1/2। अगर होती है डाउनवर्ड तो आएगा -1/2। वेरी इजी। ये पहला जो है ना ये आएगा +1/2, दूसरे वाले के लिए क्या आएगा -1/2। एस की सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगे, +1/2 और दूसरा आएगा -1/2, ठीक है। सो इस तरीके से ये है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, पैरेलल स्पिन आया समझ में। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दिस, इट इज दे आर नोन एज द पैरेलल स्पिन्स, they are known as opposite spins. And here we have to say that when the first electron enters it will like be this, second it will be like this, so it is known as a, yes, we have to say that the spins get neutralized. तुम्हाला हळूहळू त्या गोष्टी कळतील बघा। जे बाकीचा जो होता पार्ट आपण पाहिला आतापर्यंत, जसं की that photoelectric effect or that बोहर्स मॉडल इज इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहां से शुरू हुआ है अपना पार्ट क्वांटम नंबर से, मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपरली इसको पढ़ो। यह है समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन a circular path. At the same time, electron also rotate around itself. Yes, a rotation of the electron about its own axis is known as the spinning. Spinning होता है दो टाइप का, clockwise and anti-clockwise. अगर वो clockwise है तो इट्स +1/2, अगर वो है anti-clockwise तो हो गया -1/2। और ये है तरीका इनको दिखाने का। That is the end of the topic spin quantum number and quantum number। यहाँ पे चारों के चारों हो गए। आज हम यहीं पे रुकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आपको बहुत इजी लगा होगा। देखिए वैसे ये दोनों भी जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने प्रॉपरली उसको पढ़ा तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इस पे कैसे आते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर।